Hello everyone, I am Rinku, working as an assistant professor in Department of Management in RPIT Technical and Medical Campus. Today we are discuss about the topic the phases of the entrepreneurship development program. Entrepreneurial development is an important activity to the economic field of a nation. State and central government put all effort of entrepreneurial development of all level. Different programs are the organized and sponsored from the village level to national level. Of course, training in the core activity under the entrepreneurship development program. Entrepreneurial training in the sub divided into three major stages. First, pre-training. Second, training stage. Third, post-training stage. Pre-training stage. This is a preparatory phases of launching of the program. It is a planning phase where all requests arrangement are made to deliver to a content base of the useful of the EDP. This stage of the foundation of the storage strong EDP that deliver to desired result. It is in phase first one identification of the promising area having a good commercial prospectus. Preparing of the training manual circulation. Third, selection of the project, facility, course, coordination, who is the visionary and the relative experience. Third, arrangement of the infrastructure facility of the program like location, availability of the interest, computers, foods and lodging arrangement is the participant of the expected to be from different cities. Making proper publicity of the program of the attacking of the potential entrepreneur, providing the information and guidance of the interest individual. Next, check out detail of the training programs. It the organize necessary tool and equipment of the training purpose. Communicating and the applicant for attending and the training कि बेसिकली हमारा जो प्री ट्रेनिंग जो स्टेज होता है इसके अंदर हमारा ये प्रेजेंटरी हम फेसेस इसको लॉन्च के प्रोग्राम के लॉन्च करते हैं. इसके अंदर हमारी जितनी भी रिक्वेस्ट जो अरेंजमेंट होती है उसको कैसे डिलीवरी करना है और जो यूज़फुल हो हमारे एडीपी प्रोग्राम के लिए उन सभी चीज़ों से रिलेटेड हमारे लिए स्ट्रॉन्ग जो है हमारे जो फाउंडेशन क्रिएट करने में हमें हेल्पफुल करती है ये जो प्री ट्रेनिंग स्टेजेज है. इसके अंदर हमें क्या क्या कम्युनिकेशन प्रोस्पेक्टस क्या चाहिए, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट फैसिलिटी चाहिए, फैकल्टी क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे, विजनरी क्या रहेगा, अरेंजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या चाहिए लाइक लोकेशन क्या रहेगी, अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी, कंडक्टिंग जो इंडस्ट्रियल सर्वे है वो कहाँ कंडक्ट कराना है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गुड्स ऑफ द बिजनेस गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, डिजाइनिंग ऑफ द कोर्स कंटेंट किया जाता है. इसके अंदर गेटिंग द सपोर्ट ऑफ द वेरियस एजेंसीज सच एज द DIC, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, SI डिफरेंट हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे जो एजेंसीज़ हैं जो फाइनेंशियल एजेंसीज़ हैं वो भी इस प्री ट्रेनिंग को क्या करते हैं सपोर्ट्स करते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो. एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी ऑफ द EDP टू रीच प्रोस्पेक्टिव माइंड, promoting the campaigning through the either with the help of the print or election media, left-hand poster etc. and selection of the participant from the training program. Communication with the applicant and attending the training. Invite expert resource person of the training program. The pre-training activity are the organized in a systematic manner for the successful training program. कि हमारी जो प्री ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए हमें जितनी भी जो प्री ट्रेनिंग एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइज की जाती है वो एक सिस्टमेटिक मैनर में होनी चाहिए. वही तभी हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हमारा EDP जो प्रोग्राम है विलेज टू नेशनल लेवल पर वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब हमारी एक सीक्वेंस फॉर्म में जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है चाहे वो प्लानिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रिपेयरिंग से रिलेटेड हो, चाहे मेकिंग से रिलेटेड हो, चाहे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग से रिलेटेड हो, चाहे ट्रेनिंग प्रोग्राम की डिटेल्स को चेकआउट करने से रिलेटेड हो, सभी चीज़ों को कम्युनिकेट किस तरीके से किया जाएगा, कौन फैकल्टी जो प्रोजेक्ट फैकल्टी है जो एक्सपर्ट जो इन्वाइटेड सोर्सेज पर्सन हैं वो किस तरीके से उन लेक्चर्स को डिलीवर करते हैं, वो सभी चीज़ें इस फर्स्ट फेजेस के अंदर हमारी क्या की जाती है कंक्लूड की जाती है ताकि हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप जो डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, जो हम डिलीवर करना चाहते हैं जो हमारी डिज़ायर्स है उसे प्री ट्रेनिंग. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेनिंग फेज. The primary thrust of the training program to install motivation, skills and competency amongst of the burden of the entrepreneurship. Entrepreneur of the EDP should aim to provide both theoretical and hand of the practical knowledge to various training. Training phase in the EDP are including
Like these are the registration of the participant and distribution of training literacy manual, training schedule. Arrange the lecture by the resource person and expert, exposing new ideas and new investment opportunity to the participant, providing the information about the sportive institutes and agencies to prospect entrepreneurship. कि हम इस ट्रेनिंग जो फेज़ को है हम इसको डिफरेंट उसमें पार्ट्स में हम इंक्लूड करते हैं. फर्स्ट वन इसके अंदर आता है मैनेजमेंट. अब दे शुड बी द teach and the basic principle of the management. There are the application in real life scenario to realistic of the benefit and significant of the management function like planning, organizing, staffing, directing, controlling and coordination. These are various techniques involved of the management process must be to explain. The trainer can be used in case study, management game, role play and simulation of the policy of the skills acquired of the training. Second, technical competence. Focus should be led up to acquire technical competency suitable to area selection. Industry expert may be called up to share their experience. It is important for the trainee to understand the basic of the technology, rate of the technology, change in the industry and challenges of the health, providing the information regarding the different schemes, concerns and facilities available for the launching of a new business, and the injecting of the high stimulation amongst participants to become a successful entrepreneur. Third, motivation and stress management. The entrepreneur training program are designed to evaluate of the sustain to motivation level of the training. Stress management is important component of the EDP as an entrepreneur have to struggle through the different phases before the final getting of the result. They should teach stress management technique and should also consult to hold on their belief and ideas. The importance of the family member need to highlight here. Entrepreneurship are strong, well in individual who maybe need family support during the teaching time. Increasing morale and the confidence and participant launching of the managerial activity through the motivation and stress management, providing the entrepreneurship creative quality awaiting the participant of the transforming of the successful entrepreneur through the help of the technological and technical competency, preparation of the different project report at a model and the project and guide to participants, making of the project report of the proposal with the help of the management phase. These stages are attempt to make an individual an entrepreneur, hence is the most important stage of the process of the entrepreneurship development. कि बेसिकली इसके अंदर हमारा जो हमने जो आइडियाज़ जो बनाया है, जो ट्रेनिंग के अंदर जो हमने फर्स्ट प्री ट्रेनिंग के अंदर जो हमने डिज़ाइंस तैयार किए हैं, जो अरेंजमेंट की है, उनको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा, उनको इंस्टॉलेशन कैसे की जाएगी, ताकि हमारा जो थियोटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमारे जो ट्रेनिंग हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, उनको इफेक्टिवली वे में उनको क्या किया जाए, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए. इसके अंदर हमारे जो ट्रेनिंग फेसेज के अंदर आती है वो 3 ट्रेनिंग फेसेज को हम डिवाइड कर देते हैं, मैनेजमेंट के थ्रू, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी के थ्रू, मोटिवेशन ट्रेनिंग स्टेज. पोस्ट ट्रेनिंग स्पोर्ट्स सर्विस आर readiness of the participant who have to successful complete the entrepreneurship. Entrepreneurship development aimed at making prospective entrepreneur in real one and real entrepreneur into a successful one. It means that as an objective is not only making entrepreneur but making him successful entrepreneur. It is equal essential to sustain the development of the entrepreneurship by making the existing entrepreneur successful. From that point of the view, post-training stage is equal important. Post-training activity are decided of the rate of successful of entrepreneurship development program. कि बेसिकली इसके अंदर हमारा जो पोस्ट ट्रेनिंग जो स्टेज है हमारा वो प्री ट्रेनिंग और ट्रेनिंग फेज़ के अकॉर्डिंग ही इक्वल इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर इसकी एक सिंपल सी थ्योरी है कि इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मेकिंग दी एंटरप्रेन्योर, कि यहाँ पर सिर्फ एंटरप्रेन्योर को बनाना नहीं है बल्कि मेकिंग हिम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, कि उनको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बनाया जाए उसके लिए रिलेटेड उनसे जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जो एम डिसाइड किया जाता है वो प्रोस्पेक्टिवली किया जाता है इसके अंदर. दिस फेस में बी कंपेयरिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेप. फर्स्ट वन, अस्टेन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एंटरप्राइज, कि इसके अंदर वो एंटरप्राइज को रजिस्ट्रेशन करे, एक स्टार्टअप अपना ऑर्गेनाइजेशन करे जिसके अकॉर्डिंग वो अपने जो उसने एक ट्रेनिंग ली है, जो उसके पास स्किल्स हैं, जो स्टेबिलिटी है, जो मोटिवेशन है, उसको वो एक्सप्लोर कर सके, इनोवेटिव कर सके और उसको प्रोड्यूसिंग के अंदर वो डाल सके. सेकंड,
लोन प्रोसीडिंग एंड दी डॉक्यूमेंटेशन, कि उससे रिलेटेड जितने भी जो कैपिटल वेंचर है कि उसको कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से वो आगे फंडिंग कैसे की जाएगी, उससे रिलेटेड लोन कहाँ पर कौन कौन सी एजेंसीज हैं, चाहे वो स्टेट की हों, चाहे सेंटर की हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितनी भी फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनको जो लोन्स प्रोवाइड कैसे कराया जाएगा, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, वो सभी चीज़ें आफ्टर ट्रेनिंग के बाद पोस्ट ट्रेनिंग ऑफ फॉलोअप फेज में भी ये कराई जाती है। फैसिलिटिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक लैंड, प्लांट लेआउट, परचेज ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी एंड पावर कनेक्शन एटसेट्रा, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड उनको रिव्यू प्रोवाइड किए जाते हैं, उनसे रिलेटेड उनकी हेल्प की जाती है कि हमें जो लैंड जो एक्वायर करनी है वो कैसे की जाएगी, प्लांट लेआउट किस तरीके से तैयार किया जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी हम किस टेक्नोलॉजी की परचेज करेंगे, पावर ऑफ कनेक्शन कैसे लिया जाएगा, सिक्योरिंग ऑफ द सब्सिडीज एंड ग्रांट एंड यूटिलाइजेशन इंसेंटिव गिवन बाय द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। इस फेज़ के अंदर बेसिकली उनको जो ट्रेनिंग के बाद कि हमें स्टार्टअप कैसे करना है, कोई बिजनेस कैसे डेवलप करना है, उससे रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो इंसेंटिव स्कीम्स चलाई गई हैं, जो सब्सिडीज़ जो ग्रांट्स उनको प्रोवाइड की जाती हैं, उनका बेटर यूटिलाइजेशन कैसे कराना है, कैसे उनका फैसिलिटीज़ का बेनिफिट उठाना है, उन सभी चीज़ों को इस ट्रेनिंग के अंदर उनसे रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो इसके अंदर हमें उनको सपोर्टिव सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो सक्सेसफुल अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जो उसने एंटरप्राइज स्टार्टअप किया है वो उसको इजीली अचीव कर सके। मैनेजमेंट ऑफ द कंसल्ट ऑफ द देयर ट्रबल ऑफ द शूटिंग एंड ऑफ द प्रोवाइडिंग अप टू डेट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, उनको टाइम टू टाइम उनको अप टू डेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है इंडस्ट्री रिलेटिंग, मीटिंग द एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजर एंड पार्टिसिपेंट्स, और टाइम टू टाइम उनके जो एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइजर हैं और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बीच में टाइम टू टाइम हम मीटिंग भी ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। फॉलो अप द एक्टिविटी टू द ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर इनटू ए रियल एंटरप्रेन्योर, इसका मेन मोटो ये भी होता है कि एंटरप्रेन्योर को रियल एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें एक्टिविटी है उसको ईजिली ट्रांसफॉर्म किया जाए। फॉलो अप ऑफ द लॉन्चिंग ए न्यू बिजनेस टू अंडरटेकिंग ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि जहाँ पर जो ट्रेनर था हमारा जो पार्टिसिपेंट था उसने जो न्यू बिजनेस एक्टिविटी जो बिजनेस आइडिया जनरेट किया था उसको इजीली उसको लॉन्च किया जा सके। असेसमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड सी दैट इज अप्रूवल ऑफ द कंडीशन ऑफ द अथॉरिटीज, की उसको जो उसने कंडीशन एंटरप्राइज स्टार्टअप के जो डॉक्यूमेंटेशन किया उसके अकॉर्डिंग उसको अप्रूवल मिल गई है या नहीं मिली, उन सभी चीज़ों को फाइंड आउट करना। गाइडिंग द प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर टू प्रिपेयर ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट कंपाइल विद द लीगल एंड टेक्निकल फॉर्मेलिटीज फॉर स्टार्टिंग ए business is a state of the organizing to all necessary source including of the machineries, raw material and technical knowledge etc. These are the different phases of the entrepreneurship development: pre-training, training and post-training or follow-up phases. Okay class, thank you.